In the name of Allah Almighty, who is the most forgiving and is the most beneficent, I hope आप सब ठीक हैं. I have brought some changes into my videos. Before it, I was just studying down articles and taking out words and was teaching you English words and expressions. Now, with addition, I have also decided to include some other type of articles such as writing blogs and historic articles. So today I have chosen an article written on the sixth Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir. So we will also discuss the historic facts, and along with it, we will be learning English, and we will try to learn that how expressions are fixed, how different vocabulary is used in historic passages, in historic works, and how sentence structures are followed whenever we are sharing a tale or when we are telling a story. So today I'm going to explain an article that is published on LinkedIn, the tale of sixth Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir. अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली औरंगजेब आलमगीर की स्ट्रगल के ऊपर है. वो मुगल एम्परर थे जो कंट्रोवर्सीज हैं उनकी जिंदगी में, और उनका कंपैरिजन उनके भाई से किया गया है जिनका नाम था दारा शकू. यहाँ पे किंग शाहजहां की भी काफी बातें हैं, और कलेक्टिवली किन ग्राउंड्स पे आलमगीर ने जो है वो तख्त पे कब्जा किया और किस तरीके से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की. वैसे तो आलमगीर को एक कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है, लेकिन थोड़े से फैक्ट कलेक्टिवली एंड कंप्रेसिवली यहाँ पे यूज किए गए हैं. तो लेट्स फाइंड आउट. ये आर्टिकल लिखा है जेम्स जेमी ने. ओके. Aurangzeb was a different kind of royal boy. He lived the most unfortunate childhood as compared to other princes in the house of Timur. His father Shah Jahan neglected his unsullied character, masterly military skills, and sagacious political footings. आलमगीर दूसरे शहजादों से अलग था अपने मिजाज में, और उसके अलावा उसका जो बचपन था वो काफी अनफॉर्चुनेट होके गुजरा था, और उनके जो फादर थे उन्होंने नजरअंदाज किया आलमगीर की स्किल्स को, और उनके दुश्मनों ने आलमगीर की काबिलियत को मिसकैलकुलेट किया. Aurangzeb Alamgir died as the most powerful emperor in Indian history. आलमगीर हिंदुस्तान की तारीख के सबसे पावरफुल एम्परर रह चुके हैं. Alamgir is a most controversial figure in the House of Mughals. He seemed as averse to his forefathers' policies. आलमगीर को एक कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है, और ये कहा जाता है कि आलमगीर अपने जो अजदाद थे उनकी पॉलिसीज के खिलाफ गए. लेकिन हम देखेंगे कि कैसे वो खिलाफ गए या कैसे उनकी जो गवर्नमेंट की फाउंडेशंस थी उन्होंने रखी. Despite a low-scale presentation of his image, he was underestimated by his father, and his strength was miscalculated by his enemies. He translated Babur's dream to conquer the whole Indian subcontinent. His era was the peak of Mughal monarch. उनकी एक लो प्रेजेंटेशन कोर्ट में रखी जाती थी. कोर्ट हम कहते हैं मुगल दरबार, दिल्ली दरबार जिसे कहा जाता है. तो उनकी एक लो प्रेजेंटेशन बचपन से ही रखी जाती थी, लेकिन उनके दुश्मन और जो कोर्ट में लोग मौजूद थे उन्होंने अंडरएस्टिमेट किया उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को. यहाँ पे एनिमीज वो मिनिस्टर्स, उन मिनिस्टर्स को कहा गया है जो आलमगीर के शुरू से ही खिलाफ थे. लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन के बावजूद आलमगीर ने अपने परदादा बाबर का ख्वाब पूरा किया, जो कि था पूरे सब कॉन्टिनेंट को फतेह करना, और उसने करके दिखाया. Mughal princes used to be well dressed, highly skillful in archery and swordmanship. They were also prominent for their harems, keeping wives and odalisques. Dara Shikoh, King Shah Jahan's elder son, led luxurious life, and Aurangzeb was not convinced by desires. अब जो मुगल शहजादे थे वो बहुत जबरदस्त कपड़े पहनते थे, सबसे महंगे कपड़े पहनते थे. उनकी जो मिलिट्री स्किल्स हैं, खास करके आर्चरी और स्वॉर्डमैनशिप, तलवारबाजी की, वो बहुत आला हुआ करती थी, और वो काफी मशहूर हुआ करते थे बीवियां रखने में और कनीजें रखने में. और दारा शकू जो सबसे बड़े बेटे थे किंग शाहजहां के, उन्होंने काफी लग्जरियस लाइफ बिताई है, और आलमगीर
की काफी सादा तबीयत थी, तो उन्होंने बाय चॉइस सिंपल सिटी को अडॉप्ट किया और जो वर्ल्डली डिजायर से उनसे काफी दूर रहे बचपन से ही. Dara started drinking and womanizing from his young days, while Aurangzeb was interested in making himself efficient in administration and military. जब दारा शकू ने अपने आप को डुबो दिया वुमेनाइजिंग में, वुमेनाइजिंग बहुत आम वर्ड है, आपको इसको पता होगा, और ड्रिंकिंग का मतलब है पीना, ड्रिंक करना. तो दारा शकू ने अपने आप को ड्रिंकिंग में मदहोश रखा और वहीं पे आलमगीर ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज को बढ़ाने में और मिलिट्री स्किल्स को सीखने में. इट इज ट्रू दैट दारा वाज शाहजहां चॉइस फॉर द मुगल थ्रोन. यह भी सच है कि शाहजहां चाहते थे कि दारा शकू एम्परर बने. लीपिंग बैक टू यंग डेज ऑफ प्रिंसेस, Dara and his family remained under king's blessings, and Aurangzeb and his boys were treated as they had never been born to the house of Mughals. अगर हम उनके जवानी के दिनों को याद करें तो दारा शकू और उसकी जो फैमिली थी उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिले मुगल दरबार से, और वहीं पे जो दूसरे शहजादे थे आलमगीर, उनके बच्चों को अवॉइड किया गया. और आगे है कि ईद पे भी उनको कोई गिफ्ट ना भेजी गई उनकी ग्रैंडफादर की तरफ से. Even on Eid, his children received no wishes nor gifts from their grandfather. More, he had only staunch support in the family. It was his sister Nisa. She had always in the touch with him and was advocate of his actions. Moreover, Aurangzeb was tasked to root out rebellion in the Central Asian city. अब उनकी फैमिली में एक ही स्टांस सपोर्टर थी एंड शी वाज हिज सिस्टर निसा. निसा ने हर स्टेट में, हर एक्शन में आलमगीर को सपोर्ट किया और जो रिप्रेजेंटेशन थी आलमगीर की इन दी रॉयल फैमिली उसको मजबूती से बनाए रखा और आलमगीर की इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश भी की. उसके बाद क्या हुआ कि आलमगीर को पोस्ट किया गया समरकंद में, जो एक सेंट्रल एशियन सिटी थी. याद रहे मुगल एम्पायर बहुत एक्सपांडेड एम्पायर थी और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की कुछ और स्टेट्स दे वर द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. तो उनकी पोस्टिंग वहां पे की गई. असल में शाहजहां ने ये इस वजह से किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे आपस में लड़के मरे, तो बेहतर था कि आलमगीर को बाहर भेजा जाए. He served there about a decade. He writes in his biography mentioned in the book Delhi by Khushwant Singh, "At night I used to hear the chants of sword in my ears, and I had scars on my body everywhere. I blamed my virtue for this doleful condition as being prince." आलमगीर ने तकरीबन 10 साल वहां पे गुजारे और यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि दिल्ली एक बुक है खुशवंत सिंह की, उसमें एक बायोग्राफी लिखी गई आलमगीर की. उसमें आलमगीर कहते हैं कि मैंने अपने आप को कोसा कि जब मेरी पोस्टिंग समरकंद में हुई तो रातों को मैं तलवारों की आवाजें सुनता था जब दुश्मनों के साथ हम लड़ते थे, और जब आई यूज्ड टू स्लीप, आई मींस ही वाज सेइंग कि मेरे जिस्म के हर एक हिस्से पे तलवार के घाव मौजूद थे. तो मैं उस वक्त सोचता था कि आखिर मैं शहजादा बना ही क्यों कि मेरी इतनी बुरी किस्मत है, और 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है. While battling against furious tribesmen, Aurangzeb mastered crushing armed uprising and earned a high place in the hearts of Mughal generals. Like other brothers, he had also his own a few thousand troops who were faithful to him. लेकिन आलमगीर ने वहां पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जो ट्राइब्समैन थे उनकी बगावत को कुचलने के ऊपर महारत हासिल कर दी आलमगीर ने, और बहुत अच्छे तरीके से ही फेस देम. और इसके आगे है कि जैसे हर मुगल शहजादे के पास अपने ट्रूप्स थे, तो आलमगीर के पास भी अपने फेथफुल ट्रूप्स थे. He was generous to his men, used to treat all equally, and was most punctual when it came to prayers. आलमगीर बहुत ही अच्छा था अपने सिपाहियों के साथ. उसने हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया, और खास करके पंक्चुअलिटी के हवाले से ही वाज फेमस व्हेन इट केम टू प्रेयर्स. जब भी नमाज पढ़ने की बात आती थी, so he was ate his time. Aurangzeb left the battleground many times at the time of prayers by his act. Enemies feared from him. They called him Allah's man and surrendered. It was a fright for Dara as well, but a strong position for the emperor in the world.
आलमगीर ने बाज़ दफा ऐसा किया कि जब भी नमाज पढ़ने का वक्त आया तो बीच जंग में जंग को रोक के वहीं पे नमाज शुरू कर दी। याद रहे कि समरकंद में जो उनके मुखालिफ थे, जो मुगल्स के मुखालिफ थे, ट्राइब्समैन, वो सारे मुसलमान थे, और ये एक बीच जंग में नमाज शुरू कर देना, इस एक ने उन लोगों को डरा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह का बंदा है, खुदा का बंदा है, और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, और उन्होंने कभी भी आलमगीर के साथ जंग नहीं की इस डर से। और ये डर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था, बल्कि दारा शकू के लिए भी डर था, और इससे मजबूत पोजीशन किसी और की हो ही नहीं सकती बादशाह बनने के लिए, क्योंकि समरकंद बहुत ही जो है वो अफरा तफरी वहां पे उस वक्त मची होती थी, तो बहुत मुश्किल होता था किसी भी आर्मी को वहां पे सरवाइव करने में। औरंगजेब ब्रॉट पीस इन द रीजन वेयर नन डेयर टू गो। अब उनकी पोजीशन मजबूत इस वजह से भी है क्योंकि उन्होंने वहां पे अमन कायम किया जहां पे कोई जाने की हिम्मत ना करता था। Additionally, the victorious Aurangzeb wasn't called back, but he reached Delhi with his 8,000 troops. Listening to a tragic incident, Princess Nisa was injured in her room. Her perfume collection had caught fire. एक वाकया हो गया अचानक और आलमगीर दिल्ली पहुंच गए अपने सारे ट्रूप्स को लेकर। वो असल में बगावत नहीं थी, बट ही केम टू इंक्वायर हिज सिस्टर। तो वहां पे क्या हुआ, शाहजहां गॉट infuriated seeing his son in the house without his knowledge. He ordered him to go back to his job and ensured he would personally take care of Nisa. लेकिन वहां पे शाहजहां को गुस्सा आया कि कैसे एक शहजादा बिना बादशाह की इजाजत के ऐसे महल में आता है। तो वहां पे शाहजहां ने कहा कि मैं निसा का पर्सनली ख्याल रखूंगा, तुम वापस चले जाओ अपने महाज पे। तो उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब रिफ्यूज टू डू सो एंड वाज सस्पेंडेड फॉर नेक्स्ट 6 years ऑफ हिज सर्विस। दारा सपोर्टर्स नेम्ड द रिटर्न इज म्यूटिनी टू द किंग। लेकिन आलमगीर ने इनकार कर दिया क्योंकि आलमगीर को ये खदशा था कि मेरी बहन को मारने की कोशिश की जा रही है और ये बात किंग शाहजहां को ठीक से पता नहीं है। तो उन्होंने प्रेफरेंस दिया अपनी स्टे को दिल्ली में, बजाय जो वो वापस समरकंद जाएं। उसके नतीजे में 6 सालों के लिए सस्पेंड किया गया सर्विसेज से आलमगीर को, और इस इवेंट को दारा शकू के सपोर्टर्स ने एक बगावत करार दिया। Uncommonly, the Mughal Empire succession method was based on Jahangir's by word. There is no kinship to kingship. It was believed that the rightful and the best suit for the throne, one who owns military capabilities, political wisdom, and was valiant enough to cope with challenges posed to the state. मुगल एम्पायर्स की जो फाउंडेशन है और जो तरीकेकार है बादशाहत को हासिल करने का, वो ये है कि देयर इज नो किनशिप टू द किंगशिप। बादशाहत में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, और इस बात पे यकीन किया जाता था कि एक शहजादे को तभी बादशाह बनाया जाए जब उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो और सियासी विजडम हो, और उसके अलावा वो इतना काबिल होना चाहिए जो स्टेट को चैलेंजेस पोज थे उसको वो फेस कर सके। Monarchy has nothing to do with personal interests, preaching, or extra management affairs. It demands masterly qualities to run the state. In addition, Dara Shikoh was inclined to philosophy and mystic ideals alone. His incapability of worldly affairs caused his demise. और आगे है कि मोनार्की को इस बात से मतलब नहीं है कि किसी के पास कोई पर्सनल लाइफ में क्या करता है, कोई किसी चीज को फैलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसमें सिर्फ यह है कि जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो शहजादों को आने चाहिए। लेकिन दारा शकू का इंटरेस्ट फिलोसफी में था, मैसिज्म में था, और वो इसी बात से सिर्फ इंस्पायर था। His incapability of worldly affairs caused his demise. दारा शकू ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना इंटरेस्ट शुरू से नहीं लिया, और यही सबसे बड़ा सबब बना उसके जवाल का। More, Dara's timeline shows that he lived a luxurious life, titled as Crown Prince for the first time in the Mughal history, became emperor for 1 year and was lost to his fate. दारा शकू की अगर हम तारीख देखें तो वो मुगल शहजादों में सबसे पहले वलीयत शहजादे थे। वलीयत शहजादों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मुगल इरा में, लेकिन शाहजहां ने
जो है अपने एंसेस्टर्स के खिलाफ जाके ये फैसला लिया और दारा शकू को वलियत शहजादा मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद 1 साल तक दारा शकू हिंदुस्तान के एम्परर रह चुके हैं, लेकिन तारीख में उनको एम्परर काउंट इस वजह से नहीं किया जाता बिकॉज ही वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर गवर्नर्स एंड प्रिंसेस। Equally important, the tale of Aurangzeb Alamgir resembles his father and ancestors. Like all throne claimants, Shah Jahan too assassinated his brothers. Same is the case, his son Aurangzeb defeated Murad and advanced to the capital to claim the emperorship. अब ये इतना ही अहम है जैसे औरंगजेब आलमगीर के फादर ने अपने भाइयों को रास्ते से हटा के, अपने भाइयों को असैसिनेट करके थ्रोन पे कब्जा किया, उसी तरीके से औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाई मुराद को डिफीट करके और फिर दिल्ली की तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़े जब शाहजहां मेंटली इल हो गए थे। Who had dared to knock out Samarkand's hero Alamgir just within countable hours, he checkmated Dara's army. Dara fled, leaving the throne unprotected, and the rest of his generals surrendered. जब आलमगीर दिल्ली पहुंचा अपना जो उसका पैदाइशी हक था थ्रोन पे उसको लेने के लिए, तो वहां पे एक बात बहुत फेमस थी आर्मी के अंदर कि आलमगीर जो समरकंद का हीरो है उसके साथ कौन लड़ेगा। ही वाज वेरी फ्यूरियस इन फाइटिंग। तो कुछ ही घंटों में दारा शकू की जो बटालियंस थी उसको बीट किया गया और दारा शकू दिल्ली छोड़ के चले गए, वहां से भाग गए। और उसके बाद जो जनरल्स थे दारा शकू के उन्होंने सरेंडर कर दिया एंड देन आलमगीर बिकेम द एम्परर। क्योंकि एम्परर बनने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि तख्त पे आप बैठें, एम्परर बनने के बाद रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है, जो अग्री ना करे उसके साथ जंग करनी पड़ती है। यही तरीकेवार था किंगडम्स के अंदर। Let me tell you what had happened to the शाहजहां the magnificent king। मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या हुआ था शाहजहां के साथ कि इतना बड़ा अजीम बादशाह उनको क्यों अपना तख्त छोड़ना पड़ा। After Mumtaz's departure, the fifth Mughal emperor Shah Jahan lost his mental strength and was not able to recollect himself. He spent 6 days in a single room mourning his beloved's death. शाहजहां जो 5वें मुगल एम्परर थे, उन्होंने अपनी जो जहनी कुव्वत थी वो उनकी काफी कमजोर हो गई थी जब उनकी बीवी मुमताज की डेथ हो गई। तो वो उसकी याद में रहने लगे और मतलब बहुत वीक हो गए मेंटली। तो इसी वजह से उन्होंने अपने आप थ्रोन को सरेंडर कर दिया। On the other hand, the state affairs suffered. A bunch of orders were tabled and penned. In such a horrifying circumstances for the state, Shah Jahan withdrew in support of his elder son Dara Shakoo. उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया था एक कमरे के अंदर, गम की हालत में वो थे काफी वक्त से। तो जो स्टेट अफेयर्स थे वो बहुत मुतासिर हो रहे थे और बगावत का भी काफी खदशा था। तो ये डिसीजन जो है वो शाहजहां ने कर लिया, उन्होंने सरेंडर करके दारा को तख्त पे बिठा दिया। Ministers, councillors, and many generals recognized him owing to the owing to the political situation in the country, and the governors could have betrayed Delhi on the pretext of a king-less state. क्योंकि इस बात का खदशा पैदा हो चुका था कि अगर नए एम्परर को मुंतखब नहीं किया जा रहा है, अगर कोई नया एम्परर नहीं आया तो जनरल्स हैं, गवर्नर्स हैं, वो बगावत ना कर दें और दिल्ली पे कब्जा ना हो जाए। अगर कैपिटल फतेह हो गया तो लाजमी बात है पूरी एम्पायर फतेह हो जाएगी। तो जल्दी में से जो वहां पे लोग मौजूद थे उन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर दिया दारा शकू को एज एम्परर। लेकिन ये बात तो हुई, बाद में अगर शहजादे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं किसी भी शहजादे को एज एम्परर तो उनको जंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप यही था, क्योंकि आलमगीर ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया दारा को और ना ही उनके जो 2 भाई थे उन्होंने। Furthermore, the political fabric of the country was aware that there would be bloodshed between Dara Shakoo, Aurangzeb and other brothers as per Jahangir's principle, there is no kinship to the kingship. और उसके बाद जो पॉलिटिकल फैब्रिक था इंडिया के अंदर, मुगल एम्पायर के अंदर, उनमें ये खदशा बैठा हुआ था कि अब जंग होगी इन 4 शहजादों के बीच में, क्योंकि प्रिंसिपल पॉलिटिक्स का पहले ही डिफाइन था जहांगीर का कि बादशाह में कोई रिश्तेदारी नहीं,
आगे है, among the princes, Aurangzeb was the most capable of winning the position, but his fate too yet to be decided. आलमगीर बहुत ही मजबूत शहजादा था एम्परर बनने के लिए, लेकिन अब उसकी किस्मत का भी फैसला होना था, हुआ नहीं था. He proved it so and became the sixth widely recognized Mughal emperor. और ये उसने साबित किया और वो मुगल एम्पायर का छठवां बड़ा बादशाह बन गया. In the end, the account of princes and kings end alike. आखिर में शहजादों और बादशाहों की किस्मत ऐसे ही पूरी होती है. Aurangzeb schemed no conspiracy against any of his brothers, neither Dara Shikoh at the time of Shah Jahan's submission. जब शाहजहां ने खुद अपने आप को सबमिट किया, उस वक्त औरंगजेब ने कोई भी कंस्पायरेसी दारा शको के खिलाफ नहीं की और ना ही अपने दूसरे भाइयों के साथ की. Dara had overlooked his errors and had escaped his image as less a prince and more luxuriant preacher. दारा शको ने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं और अपनी इमेज को मतलब शहजादा कम और एक ख्वाहिशमंद आदमी बनाने में ज्यादा बिताई. नोटेबली अमंग द सिबलिंग्स नन वाज गिल्टी. यहाँ पे अहम बात यह है कि उन भाइयों में से कोई भी गुनहगार नहीं था. They did what was royal tradition, and battle was only meant to be emperor of great Mughal empire. उन भाइयों ने आपस में जो कुछ भी किया वो एक रास्ता था मुगल एम्पायर का शहंशाह बनना. तो इस आर्टिकल का मकसद है कि इसकी जो थीम है वो जो मुगल एम्पायर के अंदर, मुगल प्रिंसेस के अंदर जो एक तरीकेवार था बादशाह बनने का, उसके ऊपर है. और कैसे आलमगीर ने हिंदुस्तान की शहंशाहियत हासिल की और कैसे फायदा उठाया वक्त का अपने आप को स्किल्ड बनाने का. तो असल में इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि आलमगीर की इमेज कोई अच्छी नहीं थी शाहजहां के दिल में, लेकिन वक्त के साथ मुश्किलातों के साथ उसने सारी चीजें कर दिखाई. जो कंसिस्टेंसी इंसान की और बहादुरी है, अपने आप को मजबूत बनाना है, वही कामयाबी की जमानत देता है. बाकी कोई भी उसूल कामयाब होने का नहीं है. आदमी चाहे खुद कैसा भी हो, लेकिन वो कामयाब बन सकता है अगर वो कंसिस्टेंसी रखे. तो आई होप ये न्यू फॉर्म ऑफ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आई विल शेयर विद यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.